السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سرزمین پر ایک انوکھا کیپٹن آیا تھا جس نے 2 بار ICC کی بڑی ٹورنامنٹس میں انڈیا کو ہرایا تھا، جس نے کیپٹن بنتے ہی 1 سال میں ہی ICC کی ٹرافی پاکستان کے نام کی۔ اس کو 8 نمبر والی ٹیم دی گئی اور وہ اسی نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا اور بازی مار گیا، لیکن کچھ اپنوں سے ہی برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ آتے ہی ICC کی ٹرافی لے گیا، ہم نے ساری زندگی یہاں دی اور ٹرافی نہیں مل سکی۔ اس کی نیچر میں سچائی تھی، اس لیے قسمت نے اس کو 2 بار چیمپئن بنایا، وہ بھی اس کے دشمن ملک انڈیا کے خلاف۔ اس کی وفاداری اور سچائی کو دیکھ کر کچھ پاکستانی فینس اس کو دلوں کے کپتان کہتے تھے تو کچھ کہتے تھے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا۔ آج ہم پاکستان کے پیارے کیپٹن سرفراز احمد کی بات کریں گے، جس نے 11 سیریز لگاتار جتوا کر پاکستان کو T20 میں نمبر 1 بنایا، اور اس کھلاڑی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، اس کو راتوں رات ٹیم سے باہر کیا گیا۔ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا کیپٹن نہیں دیکھا تھا جو اتنا سیریس تھا کرکٹ سے، اور آج بھی یہ صرف پاکستانی کرکٹ فین سمجھ سکتے ہیں کہ سرفراز کو ٹیم سے اور کیپٹنسی سے ہٹانا پاکستان کرکٹ ہسٹری کا بہت بڑا بلنڈر تھا، جس کے بعد ٹیم میں گروپ بندی پیدا ہوئی، اور ایسی گروپ بندی پیدا ہوئی کہ آج تک ختم نہیں ہو رہی، جس گروپ بندی کی وجہ سے 2024 کی T20 میں اور 2025 کی چیمپئن ٹرافی میں پاکستان پہلے راؤنڈز میں ہی باہر نکلا اور بہت ہی بری طرح سے ہارا۔ اگر سرفراز احمد کے ساتھ ناانصافی نہ ہوئی ہوتی تو آج پاکستان میں گروپ بندی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سرفراز احمد 22 مئی کو 1987 میں پیدا ہوئے تھے کراچی میں۔ بچپن سے ہی اس کو کرکٹ کا جنون تھا، لیکن اس کے ماں باپ اس کو کرکٹ سے منع کرتے تھے۔ سرفراز احمد کرکٹ دل جان سے کھیلتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ سمجھتے تھے کہ وہ یہاں پر ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو اس کو اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کرنے کے لیے بھی مدرسے بھیجا گیا، لیکن وہ وہاں سے بھی 1 گھنٹہ ٹائم نکال کر کرکٹ کھیلتا تھا اور بڑے شوق جذبے سے کھیلتا تھا۔ اس کا اتنا بڑا جنون دیکھ کر اس کے بڑے بھائی شفیق احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ سرفراز احمد کو سپورٹ کرے گا کہ وہ کرکٹ کھیلے، اور آہستہ آہستہ سرفراز احمد انڈر زون کراچی میں 15 کی سلیکشن لسٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ خبر اخبار کے ذریعے اس کے والد صاحب تک پہنچی تو سرفراز ڈر گیا اور وہ بھائی کو کہنے لگا کہ دادا کے پاس جائے اور اس کو بولیں کہ وہ ابو کو سمجھا دیں کہ مجھے اجازت دے۔ تو سرفراز کے دادا نے سرفراز کے والد کو کہا کہ بچے کو اجازت دیں، وہ اپنا شوق پورا کرے اور وہ کرکٹ کھیلے، اور اس کے بعد سرفراز احمد وہاں وکٹ کیپرنگ دلچسپی سے کرنے لگا۔ 2004 کا سال تھا جس میں وہ انڈر 19 کے لیے سلیکٹ ہوا، لیکن وہاں عامر سہیل جو چیف سلیکٹر تھا وہ اس کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوا، تو اس کے بعد سرفراز کے والد اس کو سمجھانے لگے کہ آپ پڑھائی پر توجہ دو، یہ کرکٹ چھوڑ دو، لیکن سرفراز احمد نے محنت جاری رکھی۔ وہ کراچی انڈر 19 میں آئے اور جہاں اس نے 3 میچز میں 250 رنز بنائی اور 15 وکٹ کے پیچھے سے شکار کیے، تو اس کی وہ پرفارمنس چھا گئی، تو پاکستان انڈر 19 میں وہ اس کو شامل کیا گیا۔ اس کی لائف کچھ بہتر ہونے لگی کہ اس کو اچانک سے قسمت کی طرف سے ایک جھٹکا لگا، اس کے والد شکیل احمد بیمار ہوئے۔ سرفراز کی انٹرنیشنل میچ ڈیبیوٹ ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔ سرفراز اس وقت ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کو بھائی نے سمجھایا اور سرفراز نے محنت جاری رکھی اور 2006 میں انڈر 19 کا کپتان بنایا گیا سرفراز احمد کو پاکستان کی طرف سے، اور اس وقت پاکستان انڈر 19 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا جس میں سرفراز احمد بڑی دلیری سے کپتانی کر رہا تھا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم اچھا کھیل رہی تھی اور فائنل تک جا پہنچی تھی، اور فائنل میں انڈیا ورسز پاکستان کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھو انڈر 19 کا ورلڈ کپ اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل ٹیم والے ورلڈ کپ سے زیادہ اس کی جو ہے نا شدت ہو جاتی ہے۔ کولمبو میں اس کا فائنل کھیلا جاتا ہے جس میں سرفراز احمد ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر لیتا ہے، لیکن یہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کی ساری ٹیم 110 رنز پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ جلد ختم ہو جائے گا اور انڈیا جیت جائے گی، لیکن جب انڈیا بیٹنگ پر آتی ہے تو سرفراز اتنی اچھی
बहादुराना कप्तानी करता है। वो पेसर्स को इस तरह से चेंज करता है कि इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग की स्विंग ही समझ नहीं पाते, पाकिस्तान के हाथों आउट हो जाते और इंडिया की सारी टीम 71 रन पर ऑल आउट हो गई और सरफराज वो वर्ल्ड कप जीत गया, अपने नाम कर गया। उसका स्पिरिट और जज्बा देखकर लोगों को लगने लगा कि ये एक दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनेगा और आईसीसी की ट्रॉफी जरूर जितवाएगा। उसके बाद सरफराज अहमद को 2007 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू कराया गया, जिसमें सरफराज अहमद विकेटों के पीछे तो एक्टिव जरूर आए। उसने तेंदुलकर और सहवाग जैसे खिलाड़ियों की कैच ली, लेकिन उसकी बैटिंग नहीं आई उस मैच में और उसको 8 मैचेस खिलाई गई, जिसमें से 6 मैचेस में तो उसकी बैटिंग ही नहीं आई। लेकिन फिर पीसीबी कामरान अकमल के पास गया और उसको बुला लिया टीम में, सरफराज अहमद की जगह रिप्लेस कर लिया। सरफराज अहमद को ठीक तरह से टेस्ट भी नहीं किया गया, लेकिन कामरान अकमल की उस वक्त जो बैटिंग फियरलेस होती थी तो उस वजह से पाकिस्तान उसको प्रेफरेंस देता था। काफी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कामरान अकमल को खिलाना पसंद करता था और सरफराज अहमद को ड्रॉप करता था हमेशा के लिए। तो कराची के दोस्त कहते थे कि ये नाइंसाफी हो रही है सरफराज अहमद के साथ, उसको कुछ तो मौका दिया जाए। लेकिन पीसीबी फिर भी कामरान अकमल को खिलाती रहती, उसको बड़े बड़े वर्ल्ड कप में चांस देती, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप हो गया, 2012 का हो गया, 2010 का T20 कप हो गया, 2014 का T20 वर्ल्ड कप हो गया। तो हमेशा से बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में कामरान अकमल को खिलाया जाता और अगर वो कैचेस ड्रॉप करता तो उसके भाई उमर अकमल को कीपिंग कराई जाती और अगर वो भी नहीं खेलता तो अदनान अकमल आ जाता। इन तीनों भाइयों को खिलाया जाता, लेकिन सरफराज अहमद को कोई चांस नहीं दी जाती। लेकिन 2015 का साल आता है जिसमें सरफराज अहमद को स्क्वाड में तो शामिल किया जाता है, लेकिन पहली मैच होती है उसमें भी उसको नहीं खिलाते, दूसरे में भी नहीं खिलाते, तीसरे में भी नहीं खिलाते। जब बहुत ही बड़ा प्रेशर आ गया सोशल मीडिया का पीसीबी के ऊपर, तो उसके बाद पीसीबी ये फैसला करती है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो डू और डाई मैच है उसमें सरफराज अहमद को खिलाया जाए और ओपनिंग कराई जाए। जब सरफराज अहमद को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप ओपनिंग करोगे और आप टीम में हो, तो सरफराज अहमद मोइन खान को कॉल करता है और उसको बोलता है कि ये लोग मुझे कल साउथ अफ्रीका वाली डू एंड डाई मैच में डायरेक्ट खिलाना चाहते हैं और वो भी ओपनिंग करवाना चाहते हैं। ओपनिंग मैंने आज तक नहीं की। और मासूमाना अंदाज में सरफराज अहमद मोइन खान को कहते हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं पाकिस्तान टीम में रहूं, ये लोग मुझसे पहली मैच में ओपनिंग इसलिए करवाते हैं कि मैं फ्लॉप हो जाऊंगा और फिर कभी टीम में ना आ सकूंगा। लेकिन मोइन उसको कहता है कि आप ये ना सोचो कि आप कहीं टीम में नहीं होगे, आप ये सोचो कि आपको मौका मिल रहा है और अगर आपने कुछ कर लिया ओपनिंग पर तो सारी जिंदगी खेलोगे आप। उसके बाद अगला दिन जब आता है 2015 का डू एंड डाई मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ होता है, तो उसमें सरफराज अहमद जैसे ही ओपनिंग पर आते हैं तो वो 49 रन बनाते हैं और कमाल की इनिंग खेलते हैं। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो सरफराज अहमद जबरदस्त 5 कैचेस लेता है, उसमें 2 इतनी अच्छी कैचेस लेता है तो सरफराज अहमद का नाम सारी दुनिया में गूंज जाता है। पाकिस्तानी फिर से पीसीबी को कहते हैं कि आपने कितने अच्छे प्लेयर के साथ नाइंसाफी की रखी थी, कब से नहीं खिला रहे थे। और उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ सरफराज अहमद 103 रन बनाता है और पाकिस्तानी टीम क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर देती है। और आपको तो पता है क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान में खेला गया था और उस वक्त पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा था, जिसमें आपको वहाब रियाज की स्पेल याद होगी जिसने वाटसन को उड़ा के रखा था। ऐसा लग रहा था कि वाटसन कल का बच्चा है वहाब रियाज के सामने। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि राहत अली एक कैच मिस करता है और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद 2016 का T20 कप का साल होता है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से बाहर हो जाता है, आफरीदी क्रिकेट को अलविदा कह देता है, आफरीदी क्रिकेट से चला जाता है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम सरफराज अहमद को कप्तानी सौंपती है और उस वक्त पाकिस्तान की टीम 9th नंबर पर होती है और चैंपियन ट्रॉफी आने वाला होता है। पाकिस्तान को एक सीरीज मिलती है श्रीलंका के खिलाफ
और कहा जाता है कि आप ये सीरीज जरूर जीतें वरना आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकोगे। और उस सीरीज में सरफराज अहमद शानदार परफॉर्मेंस और कैप्टनसी करता है, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है और पाकिस्तान 9 में से 8 नंबर पर चला जाता है और 8 टीमें खेलती हैं चैंपियन ट्रॉफी। तो सारी दुनिया सोचती है कि ये 8 नंबर वाली टीम क्या करेगी चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में मैदान में उतरता है तो पहले तो 1-2 मैच हारता है, इंडिया से भी पहले राउंड मैचेस हार जाता है। लेकिन सरफराज अहमद की तारीफ बहुत होती है, वो काफी बहादुराना फैसला लेता है। जैसे कि अहमद शहजाद सीनियर खिलाड़ी होता है, वो उस वक्त परफॉर्मेंस नहीं करता तो सरफराज अहमद बोल्ड डिसीजन लेकर अहमद शहजाद को बिठाता है और फखर जमान जो नया लड़का होता है उसको टीम में शामिल करता है। इस डिसीजन की बहुत ही बड़ी तारीफ हुई थी इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का एक डू और डाई मैच होता है, जिसमें ये होता है कि श्रीलंका जीतेगी तो वो सेमीफाइनल के लिए जाएगी, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो सेमीफाइनल के लिए जाएगा। उसमें पाकिस्तान की 7 विकेटें जल्दी गिर जाती है, लेकिन क्रीज पर कौन होते हैं? सरफराज अहमद और द ग्रेट मोहम्मद आमिर उसका साथ देते हैं। और सरफराज अहमद कहता है कि आमिर आता है, मुझे कहता है मैं आउट कभी नहीं होगा, आप बस खुद को संभालना। और ये बात सरफराज अहमद को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है और दोनों संभाल कर खेलते हैं। और उस मैच में आप मोहम्मद आमिर की शॉट्स देखो कि बैट्समैनों की तरह क्लासिक शॉट्स मारता है और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलता है और उन्हीं की पिचों पर उनके घर में ही बड़ी जबरदस्त शिकस्त देता है। इंग्लैंड की टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है, 120 रन भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान आसानी चेस कर लेता है। नो डाउट उन मैचेस में मोहम्मद हफीज का भी बहुत ही बड़ा किरदार था जिसको लोग याद नहीं करते, लेकिन आप चैंपियन ट्रॉफी देखोगे तो मोहम्मद हफीज भी मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाता आता है। वो कभी 50 बनाता है तो कभी टीम की जरूरत के हिसाब से बैटिंग करता है तो कभी बॉलिंग अच्छी कर लेता है। उसके बाद फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान डिसाइड हो जाता है और इंडिया एक दिन पहले ही जश्न मना लेती है। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने राउंड मैचेस में पाकिस्तान को हराया था, अब भी बआसानी हराएंगे। लेकिन जब मैच शुरू होता है तो क्रीज पर सर फखर जमान और अजहर अली आ जाते हैं और इधर से बॉलिंग करता है द ग्रेट बुमराह और वो एक बॉल पर आउट भी कर देता है फखर जमान को, लेकिन वो 9 बॉल हो जाती है। और उसके बाद फखर जमान इतना मारते हैं इंडियन टीम को, इतना मारते हैं वो सेंचुरी बना देते हैं और पाकिस्तानी टीम को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद अजहर अली भी खेलना शुरू करते हैं, फिर हफीज आता है, वो अच्छी खेल लेता है। सारी टीम 338 रन जैसा पहाड़ स्कोर बना देती है इंडिया के खिलाफ और इंडिया को बैटिंग दी जाती है। इंडिया इतने पहाड़ स्कोर को चेस करने के लिए ग्राउंड में आ जाती है, लेकिन उस वक्त इंडिया की इतनी लंबी बैटिंग लाइन थी कि लोग समझते थे कि 400 भी पाकिस्तान करता तब भी इंडिया चेस करती, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़े बैट्समैन फॉर्म में होते थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी होता था, ये सारे फॉर्म में चल रहे थे उस वक्त। उसके बाद भी लोग इंडिया को फेवरेट बता रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया बैटिंग पर आई, इधर बॉलिंग पर मोहम्मद आमिर आया। एक बैटिंग पिच पर मोहम्मद आमिर ने दुनिया के बड़े बैट्समैनों को परेशान करके रखा और वो उसके बॉल को टच नहीं कर पा रहे थे। सरफराज अहमद कहते हैं कि मैंने जिंदगी में ऐसी एक स्पेल नहीं देखी। सरफराज अहमद कहते हैं कि असल में प्लानिंग तो मोहम्मद आमिर करके आया है फाइनल की, हम तो कुछ भी नहीं होकर आए हैं। वो ऐसा बॉल दे देता है रोहित शर्मा को कि उसको पता ही नहीं चलता, वो LBW हो जाता है और परेशान हो जाता है, बॉल किधर से आया किधर गया। उसके बाद जब विराट कोहली आता है तो उसको ऐसे बॉल देता है कि विराट कोहली टच नहीं कर पाता उसके बॉल को। एक पर तो कैच दे देता है लेकिन स्लिप पर कैच मिस हो जाती है, एक बार तो कैच मिस हो जाती है, लेकिन फिर से मोहम्मद आमिर विराट कोहली को एक खतरनाक बॉल करता है और विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद आमिर की स्पेल कंटिन्यू होती है, शिखर धवन को भी आउट कर देता है, आधी टीम इंडिया के घर वापस जाती है और उसी वक्त ही कमेंटेटर्स सारी दुनिया के लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान जीत गया।
मोहम्मद आमिर की स्पेल देखकर ही। उसके बाद इंडिया की सारी टीम ऑल आउट हो जाती है 157 रन पर। आखिर में हार्दिक पांड्या 2-4 छक्के मारते हैं, अगर वो भी न मारते तो इंडिया की टीम जल्दी आउट हो जाती और पाकिस्तान बड़ी आसानी से फाइनल जीत जाता है। सारी कराची को लाइट से सजाया जाता है, लाहौर मीनारे पाकिस्तान को सजाया जाता है, वहाँ टीम की आमद होती है, जश्न किया जाता है, बच्चे बच्चे गलियों में नारे लगाते हैं। बड़ी बात ये होती है कि जिस दिन वो फाइनल था उस दिन फादर्स डे था, जून का महीना था, फादर्स डे था और उस वक्त डिसाइड होने वाला था कि इंडिया जीतेगा तो इंडिया फादर होगा, पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान फादर होगा, लेकिन पाकिस्तान जीत जाता है और फादर बन जाता है। सरफराज अहमद को बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है, मोहम्मद आमिर को, सरफखर जमान को, सारी टीम को। उसके बाद सरफराज अहमद का कॉन्फिडेंस बुलंद हो जाता है, वो T20 में तो किसी टीम को देखता ही नहीं है, वन साइडेड 11 सीरीज मारता है और पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 कर लेता है। मोहम्मद आमिर उसके साथ होता है और इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर हमको यूनिटी महसूस होती है। ये यूनिटी हमने जिंदगी भर नहीं देखी जितनी यूनिटी एक फास्ट बॉलर और कैप्टन के दरमियान 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में और उसके बाद सीरीज में देखी थी। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है, पाकिस्तान का जबरदस्त एरा आ जाता है ये 2-3 साल का। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वकार यूनुस और कोचेज मोहम्मद आमिर से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन उसको वनडे और T20 भी नहीं खिलाते। लेकिन सरफराज अहमद को तो यूनिटी निभानी थी क्योंकि वक्त पर मोहम्मद आमिर ने उसका साथ दिया था, उसकी कैप्टनसी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा था। तो सरफराज अहमद उसको हमेशा सपोर्ट करते रहे और उसको खिलाने की तजवीज़ देते रहे और कहते रहे कि मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसकी जरूरत है और उसकी पीक जा रही है, वो पाकिस्तान को 1-2 और वर्ल्ड कप जितवा सकता है, ऐसा सरफराज अहमद समझते थे। क्योंकि 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है और याद रखो कि पाकिस्तान की भी 11 पॉइंट्स थी और न्यूजीलैंड की भी 11 पॉइंट्स थी। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ रन रेट की वजह से बाहर हुआ था। लेकिन उस वर्ल्ड कप में आप मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखो, इंडिविजुअल तो जबरदस्त बॉलिंग करता है वो। वकार यूनुस और काफी कोचेस सरफराज अहमद को मना करते हैं कि आप मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर्स को क्यों सपोर्ट करते हो। तो सरफराज अहमद कहते रहते हैं कि अगर पाकिस्तान को जीतना है, आगे T20 के वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो इन प्लेयर्स की जरूरत है, एक अच्छी टीम होनी चाहिए पाकिस्तान के पास, तभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ एक सीरीज हारने पर सरफराज अहमद को भी किसी ना किसी बहाने से निकाल लेते हैं और मेरी राय में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि उसको निकालना और उसके बाद टीम में यूनिटी नहीं रही, ग्रुप बंदी पैदा हो गई। कभी शाहीन कैप्टन बनता फिरता, कभी बाबर आजम कैप्टन बनता फिरता, तो कभी रिजवान कैप्टन बनता फिरता और मोहम्मद आमिर जैसे लेजेंडरी प्लेयर तो टीम में थे ही नहीं, उनको टीम से बाहर फेंका गया। तो मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया छोटी सी एज में। उसकी 5-6 साल जबरदस्त क्रिकेट बची थी। उसके बाद सरफराज अहमद को लगातार इग्नोर किया जाता, उसको खिलाते ही नहीं, टीम में शामिल ही नहीं करते। 1-2 टेस्ट में खिलाते तो सरफराज अहमद उसमें भी परफॉर्मेंस करता, लेकिन उस वक्त मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो सरफराज अहमद को रिजवान से रिप्लेस किया जाता है और रिजवान खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद सरफराज अहमद का एरा यूं समझो खत्म हो जाता है। सरफराज अहमद के साथ PCB ने तो नाइंसाफी की थी, लेकिन फैंस ने कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं की। फैंस ने हमेशा उसको याद रखा, अपने दिलों का कप्तान माना और उसको आज भी याद करते हैं। आज भी जब चैंपियन ट्रॉफी होती है तो सरफराज अहमद का नाम जरूर लिया जाता है। आज भी हम फैंस कहते हैं कि एक ODI का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने जितवाया था और एक T20 का वर्ल्ड कप यूनुस खान ने जितवाया था और एक चैंपियन ट्रॉफी हमें सरफराज अहमद ने जितवाई थी। और ये 3 नाम हमेशा से एक अच्छे लफ्जों और सुनहरी लफ्जों में रहेंगे और इनको हमेशा रेस्पेक्ट दी जाएगी, याद किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सिंसियर लोगों को हमेशा याद करती है और उनको ट्रिब्यूट देती रहती है। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जानते हैं कि हमारे साथ कौन सिंसियर रहा, किसने सिंसियरिटी से कप जितवाए, इसलिए आज सरफराज अहमद की उनसे कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट है। जिन्होंने सरफराज अहमद से जेलसी की उनका आज नाम तक नहीं।